Hello students, how are you guys? I hope all of you doing good and fine. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions started with the year 2000 and so far we have completed till year 2011 completely, right? So and currently we are going through INMO 2012 and we have done two questions so far and today we are going to do the third question of INMO 2012. So guys, you can find all the videos posted on our channel and also you can find them under the playlist section also, right? So a playlist has been formed under the name of INMO flashback, so you can watch them in order, right? Okay, so today's question is based on functional equations and a bit of algebra basically. ठीक है, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है. So before beginning to see the question, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years for various competition exams like Maths Olympiads, KVPY, IIT JEE, etc. Right? Okay, so guys, आज का question देखते हैं. Let us see the question that we have to solve today. And actually again, I'll ask you guys that please try to solve this question by yourself first. पहले अपने आप से try करो, है ना? क्योंकि guys, as always, as I tell you कि अगर हो जाता है then that is very good and fine. आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे एटलीस्ट. एंड अगर नहीं भी होता है देन नो बिग डील अबाउट इट. आईएनएमओ क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो 1-1.5 घंटा अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे, इसको अलग अलग तरीके से सोचोगे, अलग अलग एंगल से अटैक करोगे, सोचोगे, लिखोगे, कुछ कुछ तो कर सकते हो ना. एंड इवेंचुअली अगर नहीं भी होता है आफ्टर 1.5 आवर, इफ यू वॉच द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. बहुत अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि कौन से मेथड्स क्यों वर्क नहीं करते हैं जो आपने किए थे, राइट? सो इट्स ऑल वेरी वेरी कनेक्टेड. आपको बहुत ज्यादा यूजफुल बेनिफिट होगा उस चीज से, राइट? सो आई सजेस्ट यू गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, ऑलराइट. सो गाइस, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. व्हाट डज इट स्टेट? It says that define a sequence f0 of x, f1 of x, f2 of x and so on of functions का sequence है given by that the first term or the first function f0 of x is 1, f1x is x and a general function is given to you. A relation is given to you like a recurrence relation kind of thing. ठीक है ना? For n greater than equal to 1 it is true. What we have to prove here is that fn of x, the nth term or you can say n plus 1th term of this sequence is a polynomial with integer coefficients, right? Let us see. So guys, इसको solve करना start करते हैं. fn of x का whole square minus 1 is equal to fn plus 1x into fn minus 1x. I'll rearrange it first guys. मैं इस term को इधर ले जाऊंगा और 1 को इधर ले जाऊंगा, ठीक है? So can I write it like this? fn of x का square minus fn plus 1x into f of n minus 1x is equal to 1. Very interestingly guys, it is equal to 1. constant को एक साइड पे रख दिया हमने so that constant आ जाए, right? Now guys, if I simply substitute n as n minus 1, वो भी 1 के लिए इक्वल होना चाहिए. यही इक्वेशन के अंदर अगर मैं n को n minus 1 डाल दूं, वो भी तो 1 के इक्वल ही होना चाहिए ना. So let me equate it here. Equal to n को n minus 1 डाल रहा हूं, that's it. fn minus 1x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस f of n plus 1 will convert to fn of x and fn minus 1x will convert to fn minus 2x of x, right? ये बन जाएगा. Now let us solve this equality guys. ये दो साइड्स को सॉल्व करते हैं, right? So एक काम करते हैं, ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे. So we'll get fn of x कॉमन. जब आप इसको राइट हैंड साइड से लेके जाओगे ब्लू टर्म को, सेकेंड ब्लू टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे, सो यूल सी यू विल फाइंड f of n of x कॉमन. ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? fn of x प्लस f of n minus 2 of x, राइट? सो दो फंक्शंस का सम है where the difference between the function is 2 basically in the sense मतलब sequence wise, term wise there is a difference of 2. n and n minus 2 है, right? Similarly on the right hand side you'll see f n minus 1x कॉमन आ जाएगा आपके पास, right? And inside the bracket you'll have fn minus 1x plus fn plus 1x,
लाइक दिस, राइट, ये आ जाएगा। यहां पे भी गाइस अगर आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो का डिफरेंस n-1 एंड n+1 में, राइट। सो वी कैन रीअरेंज इट अ बिट नाउ। देखो कैसे रीअरेंज करेंगे। लेट मी राइट दिस थिंग नाउ। एफ ऑफ एन को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं इधर और इसको इधर, राइट, ऐसा लिखेंगे। सो विल राइट इट एज एफ ऑफ n-1 इंटू एक्स, रादर n+1 पहले लिख देते हैं, ठीक है, प्लस एफ ऑफ n-1 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एन ऑफ एक्स, ये बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, this is fn minus fn of x, this is f1 of x plus f of n minus 2 of x divided by f of n minus 1 of x, ये आ गया आपके पास, करेक्ट। सो ये बन गया गाइस, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया, राइट, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। वाई इज इट एन इंपॉर्टेंट वन? सी गाइज, अब आप एक बात देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के अंदर सिंपली n को n-1 रिप्लेस कर दूंगा, सो आई विल गेट द एक्सप्रेशन विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। अगर मैं n को सिंपली n-1 रिप्लेस कर दूं, यू विल गेट द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। सो इट इज लाइक साइक्लिक थिंग, है ना। इंडक्शन वाइज आप सोच सकते हो, n को n-1 डालते हैं अगर, तो वो उसके इक्वल है। तो फर्दर इसके अंदर भी अगर आप n को n-1 डाल दोगे, वो उसके इक्वल होना चाहिए फर्दर, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। So you keep on doing this, right? If you keep on doing this again and again, eventually the same expression would be equal to, finally कम होता जा रहा है ना, n का वैल्यू आप कम करते जा रहे हो, एक एक करके करते जाओगे और सारे फंक्शंस का वैल्यू ये इक्वल है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल है अगर आप n का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो कुछ भी, है ना। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। इट इज जस्ट दैट लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में अगर आपने n को n-1 डाल दिया, राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट, उसके इक्वल है। इसका मतलब अगर आप n को n-1 डाल दोगे, फर्दर राइट साइड पे भी n को n-1 डालोगे, वो उसके इक्वल होगा फर्दर। सो इट विल कीप ऑन गोइंग, लाइक, राइट, इट्स अ साइक्लिक थिंग। सो इवेंचुअली गाइस कम करते जाओगे, सो इवेंचुअली इफ n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगा, ये सारा ही एक्सप्रेशन, द सेम एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू फॉर n इक्वल टू 2 एज वेल। तो राइट साइड पे वो n इक्वल टू 2 के इक्वल भी होगा ये फर्दर जाके, विच इज f ऑफ 2, n को 2 डाल देते हैं, which is f2 of x minus f0 of x divided by f1 of x, right? ये इसके इक्वल भी है। बट क्या मैं f2 of x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? f0 of x और f1 of x तो मुझे मालूम है। सो यूजिंग द गिवन एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, उसमें n को 1 डाल देते हैं, राइट, पुटिंग n इक्वल टू 1 इन द गिवन एक्सप्रेशन, दिस वन, ओके, putting n equal to 1 in this, let us see क्या मिलेगा। So f1 of x का होल स्क्वायर minus 1 is equal to f2 of x into f0 of x, and f0 of x तो 1 ही है, this is 1 already right hand side पे। f1 of x कितना है? x है। So x square minus 1 is equal to f2 of x, ये आ रहा है आपके पास, right, that f2 of x is a function, is a polynomial with value x square minus 1. So guys अगर आप यहाँ पे पुट करते आ रहे हो वैल्यूज, राइट, यहाँ तक, so what is this ratio actually equal to? कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि f2 of x कितना है? सी x square minus 1, राइट, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आना था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ओके, प्लस था हर जगह। सो नाउ x square minus 1 plus f0 of x is 1 divided by f1 of x, that is x. So you will see 1 and minus 1 will get cancelled. X square upon x बचा, this eventually ratio is equal to x. And that is interesting guys. तो ये जो आपका फंक्शंस का रेशियो आप ले रहे थे, that expression is actually equal to x. Constant मतलब constant नहीं, simply x के equal आ गया. So now we can solve this thing guys. इसमें अब इसको rearrange करते हैं, this expression on the left hand side, extreme left hand side, this is equal to x. So fn plus 1x, यहाँ से निकाल फाइंड कर रहे हैं हम फ्रॉम दिस स्टेप, fn plus 1x plus f of n minus 1x is equal to, इसको we are cross multiplying this term, right, fn of x को राइट साइड पे इक्वल टू x times fn of x, राइट।
सो गाइज यहां से इफेक्टिवली आपको क्या मिल रहा है, देखो लेट मी रीअरेंज दिस अ बिट. fn plus 1x is equal to x times fn of x minus f of n minus 1. Fix this. ये फाइनली आपके पास आ रहा है गाइज. एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू प्रूव इट? वेरी इजी गाइज. इसका मतलब अगर आपका कोई भी n प्लस वन टू n प्लस वन फंक्शन है जो, राइट, f ऑफ f n प्लस वन एफ एक्स जो कि n प्लस वन फंक्शन है, दैट इज सिंपली इक्वल टू x टाइम्स द प्रीवियस फंक्शन. देखो कैसे सोचना है उसको, f n प्लस वन एफ एक्स इज इक्वल टू x टाइम्स द प्रीवियस फंक्शन माइनस प्रीवियस टू प्रीवियस फंक्शन. ठीक है ना. अब आप एक बात सोचो गाइज, सिंस मतलब पिछले दो टर्म्स के साथ रिलेटेड है, राइट. फंडामेंटली क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिकरेंस टाइप का रिलेशन है. लाइक फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, पिछले दो टर्म्स का सम करते जाते हो, राइट. इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, है ना. सिमिलर टू दैट ये क्या कह रहा है, x से मल्टीप्लाई करो पिछले फंक्शन को और उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है, उससे भी पिछले वाला फंक्शन, राइट. बट द थिंग इज गाइज, अब लॉजिकली सोचते हैं, चलो टू यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी f3 ऑफ x. देखिए व्हाट इज गोइंग टू बी f3 ऑफ x. ठीक है, that is simply replacing n with 2, so that means x times f2 of x minus f of 1x, f1 of x, right. क्योंकि n को मैं 1 डाल रहा हूं, सॉरी 2 डाल रहा हूं, राइट. सो नाउ सिंस यू नो f2 of x that is x square minus 1, ये हमने यहां पे फाइंड किया था, माइनस f1 of x is 1, देखो क्यूबिक आ गया, x cube minus x minus 1, like this. So basically the point is, ऐसे ही f3 क्योंकि पॉलिनोमियल आ गया ना, बिकॉज इट वाज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू फंक्शंस एंड दोज वर पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट्स. ठीक है ना. तो यहां पे आप कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे कि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है कि कोफिशिएंट चेंज हो जाए. यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग वन फंक्शन विद x एंड अनदर विद माइनस 1 बेसिकली, और उन दोनों को ऐड कर रहे हो, राइट. सो बेसिकली द इंटीजर कोफिशिएंट थिंग, कोफिशिएंट विल नॉट चेंज, लाइक इंटीजरनेस और फ्रैक्शन हो जाए ऐसा नहीं होगा, राइट. ऐसे केसेस में जब आप करते जाओगे, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस इज बाय इंडक्शन. नाउ यू कैन प्रूव दैट ऑल द फंक्शंस, और यू कैन सी फ्रॉम दिस थिंग दैट fn ऑफ x जो आपका फंक्शन होगा बाय इंडक्शन ओनली, fn ऑफ x इज गोइंग टू बी अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स. राइट, क्योंकि होना ही पड़ेगा. अब देखो f3 ऑफ x पॉलिनोमियल आ गया, जो f4 ऑफ x होगा वो f3 और f2 से बना होगा, उनके कॉम्बिनेशन से बना होगा, वो भी इंटीजर कोफिशिएंट्स वाला पॉलिनोमियल आएगा. सो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. सो इवेंचुअली fn ऑफ x will be a polynomial with integer coefficients and that is how you will prove it, right. अब चाहो तो फंक्शन ढूंढ भी सकते हो, that is just you have to find the pattern there, f3 of x f4 of x करते जाओगे तो आपको पैटर्न भी मिल जाएगा. It is just going to take some time. Okay, although that is not required according to the question. आपको सिर्फ ये प्रूव करना था fn of x is polynomial with integer coefficients and that we have proven by this way, right? कि इंडक्शन से आप करते जाओगे तो आ ही जाएगा, because f1 और f2 और f0 they are polynomials with integer coefficients. तो f3, f4, f5 all the functions, subsequent functions will be polynomials with integer coefficients only. Okay. So that's it guys for this question. I hope सबको ये question समझ में आया and मजा भी आया करने में. If you understood this question guys, please like this video and subscribe to our channel for the amazing kind of questions and solutions, right, that we are offering. So guys, in the next video with this question, we have done the third question of INMO 2012. Half of the paper of 2012 is also done. In the next video, we'll come back with the fourth question of INMO 2012. So till then, keep watching, keep practicing, and all the best guys. Take care. Bye-bye.